जी 2014 से ये मोदी सरकार ने हुकूमत के लिए आया है। इसके बाद यहाँ हमारा सारे इंडिया को बर्बाद कर रहा है। ये लेबर वाले को, किसान वाले को, सबको नुकसान पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों को, आम आदमी को, ये मोदी सरकार का वैफल्य बताने के लिए सारे इंडिया में एक कैंपेन रखा है, क्विट मोदी कैंपेन। ये कैंपेन तो रायचूर से स्टार्ट होगा और आखिरी पार्लियामेंट चलो के साथ दिल्ली में ख़त्म हो जाएगा। वो जब तक ख़त्म हो जाएगा, वो मोदी जब तक हटाएगा नहीं तब तक नहीं ख़त्म हो जाएगा। वही है हमारा पॉलिसी। ये क्विट मोदी का ये प्रोग्राम है। हम लोग 18 तारीख को सारे इंडिया में ऑल इंडिया लेवल का एक प्रोटेस्ट भी रखा है, पूरा हर यूनिट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुक में, पूरा टोटली डिस्ट्रिक्ट, पूरा ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में। हम 5 पॉइंट्स है, हमारा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है पॉइंट्स सर? वो ये पब्लिक सेक्टर को मोदी गवर्नमेंट ने सेल कर रहा है वो, और ये हमारे डीजल प्राइस है ना, रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी एंड गवर्नमेंट, वो करने के लिए, और टेक कंट्रोल प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, रिस्टोर डोमेस्टिक एलपीजी सब्सिडी, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और ये पब्लिक सेक्टर को ये सेल करने का, स्टॉप सेलिंग दी पब्लिक सेक्टर। ये है हमारा ये 5 पॉइंट्स है। ये 5 पॉइंट्स के अंदर हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल में। आपका नाम सर? मेरा नाम है सुलेमान कलर पे, FITU का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। स्टेट प्रेसिडेंट Razak Paleri from Kerala, national president. Paleri from Kerala, national president. Abdurrahman from Coimbatore is the national general secretary. Advocate Abdul Salam from Bangalore is the national treasurer. Mr. Sulaiman is from Bangalore, is the state president of FITU. FITU है national level trade union organization, Federation of Indian Trade Union. और फेडरेशन में एक क्विट मोदी ऑल इंडिया लेबर प्रोटेस्ट that is starting on December 1st to revoke anti-labor codes. This is the first slogan. We can see in our constitution there is a 44 laws that is very favor for our laborers and workers all over India. After the Modi government, they tried to amendment these laws, and that has become 4 codes. This is for our corporates and Maldar peoples. And one important other slogan: reduce excise duty and take control pricing of petrol and diesel. The last UPA government, Dr. Manmohan Singh, withdrew the price control of petrol, and after that the Modi government withdrew the price control of government by diesel. Because of this, our petroleum products prices hike. Like that, the excise duty, central government duty and state government tax is very high. We can say a new word, that is tax terrorism. Tax is very high, more than price. Around 200% is the tax of these products. We can see on the last year, 2021, our central government tax 3.72 lakh crore. But 3.72 lakh crores is only the tax from petroleum products like petrol and diesel. In this corona time, that is 3.72 lakh crores. But this is in 1920,
1920, and 20. 3 years. Okay, that is in 1.78 lakh crore rupees. What is the difference between this amount? 120s, that is only 1.78 crore. In 21, that is to 3.72 lakh. This difference is from tax only from petrol and diesel. So our important slogan, reduce the excise duty by state government and central government in petroleum products. Third important slogan, that restore domestic LPG subsidies. The Congress government tell us all subsidies through bank. Actually, the subsidies for the ordinary peoples, they like that our poor peoples. But within one year, all subsidies are withdrawn by central government or restore the domestic LPG subsidy. Like that, the commercial LPG gas का price ज़्यादा है now. This is the effect of hotels and other fields. So the LPG subsidies restore. Fourth slogan, increase job opportunities. Our first Narendra Modi government offer us 2 crore jobs in every year, but there is no job. Our development is jobless development. So our slogan, increase job opportunities. This in 45% of a job is withdrawn in this time. So we increasing the job opportunities. And last slogan, stop the selling public sector. You can see our public sector properties are selling the cheap rate. At last, Air India is also selling. This is the policy of RSS government. That is a corporate government. So, or the last slogan is selling to stop the selling public sector. In this protest, quit Modi, like that our independence struggle time, quit India protest, like that we quit Modi. This is our campaign matter. Our state president in Urdu language also. Kannada language. अभी ये Loudly, sir. थोड़ा आवाज़ ये मोदी सरकार का यहाँ पावर इधर चल रहा है। ये पावर आने से पहले मोदी ने बहुत कुछ आश्वासन दिया है। ये 7 साल में अभी पूरा इंडिया को मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया। ये सबसे ज़्यादा ये कार्मिक लोगों और लेबर लोगों को और किसान लोगों को बहुत मुश्किल हो गया। अभी आप देखते होंगे तो कि ये 13 महीने से हमारे किसानों को दिल्ली में धूप में और ठंडी पे बारिश में बैठाया। वो उससे पहले वो पूरी मोदी क्या कर रहा है, पूरा वन मैन शो कर रहा है। देखिए वो पार्लियामेंट और राज्यसभा में दोनों भी वो चर्चा भी बिना चर्चा से वो रूल्स पास किया है और 12 महीने 13 महीने किसानों को रास्ते पे बिठाया। 700 किसानों को भी मार दिया, वो भी मार दिया के ही बोल सकता है। और उसका बाद देखिए 9 मिनट आके टीवी के सामने बात करके वो रूल्स को, वो किसानों का कायदे को वापस ले लिया। बस ये पूरे वन मैन का आर्मी करता है। वो मोदी गवर्नमेंट में दूसरे किसी भी नहीं है। मोदी सिर्फ एक वन मैन शो कर रहा है, वो पूरा उनका ही वो बात आ रहा है। इसलिए हम लोग ये क्या कर रहे हैं, पूरा सारे इंडिया को ये मोदी का ये वन मैन शो का और मोदी का वो ये फॉल्ट का पूरा सबको ये आम आदमी को बताने के लिए हम लोग ये 1 महीने का एक कैंपेन रखा है। ये सिर्फ 1 महीने में ये कैंपेन नहीं चलेगा। अगर जब तक मोदी नहीं हटाएगा तब तक ये कैंपेन चलते रहेगा। इसका आखिरी में हम लोग
ये पार्लियामेंट चलो भी एक पार्लियामेंट चलो का प्रोग्राम भी हमारा साथ में है, वो भी हमें डिसाइड किया है। उसका तो डेट अभी हो जाएगा, और इसलिए हम लोग ये क्यूट बॉडी कैंपेन रखा है। वो ये बस इतना है। पब्लिक को जोड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे सर? इसमें अलग अलग प्रोग्राम के 18 तारीख ऑल इंडिया लेवल का एक प्रोटेस्ट रखा है हम लोग। 18 तारीख को ऑल इंडिया लेवल का एक प्रोटेस्ट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में रहता है और तालुक में रहेगा, वो प्रोटेस्ट रहेगा। वो प्रोटेस्ट में सबको मोदी का फॉल्ट, मोदी का पूरा सब लोग हम बताएगा, क्योंकि ये अभी ये केंद्र सरकार जैसे नहीं चल रहा है, ये मोदी सरकार जैसे चल रहा है। सिर्फ वन मैन के सरकार चल रहा है, पूरा हुक्म वही कर रहा है, जो बिना चर्चा से पार्लियामेंट में और राज्यसभा में पूरा वो पास कर रहा है। इसलिए सिर्फ मोदी के खिलाफ चल रहा है। मतलब इसके अंदर बचाने के लिए हम निकला है, इसलिए हम ये देश बचाने का काम कर रहे हैं। अगर ये देश बचाना रहे तो मोदी को निकलना पड़ेगा बस। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आप बता ये रहे हैं, लेबर अभी देखो, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ये प्रोटेस्ट को हमने लीड कर रहे हैं। वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को उनका कोऑपरेट करने, उनको भी हम लोग दावत दे रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम चल रहा फर्स्ट ये हमारा ये फर्स्ट टाइम चल रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये क्विट इंडिया 1942 में महात्मा गांधी जी ने भी किया। उसके बाद नए 2021 में तो फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन कर रहे हैं बस। ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का एक ये है ना, अंग है, हाँ, ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तो हमारा पार्टी है, उसका एक विंग है जो लेबर विंग है। वेलफेयर पार्टी का विंग तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर वेलफेयर पार्टी तो हमारे को बिल्कुल बहुत सपोर्ट करता है बस। तो ये कभी भी ये अलग है, ये ट्रेड यूनियन कभी भी एक पार्टी का विंग नहीं होता है। ट्रेड यूनियन को FIT Not a का party. पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्टैंड, वेलफेयर पार्टी का हर स्टैंड। पार्टी का एक लेबर विंग है, नहीं, उसमें से तुम्हारा भी वेलफेयर पार्टी नहीं, आप फिर भी वेलफेयर पार्टी का ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन है। पार्टी रहते तो क्या उसमें विंग रहते, वो क्या सही बात, गलत वही नहीं वही होती है। वही है हाँ, उसका ये वो बिल्कुल वेलफेयर पार्टी का। Actually, any press note you have?